Is the parliament losing oversight over the executive? Is the responsibility that has been placed on the shoulders of the parliament being abdicated by it? Hello everyone, Jai Hind, welcome to Raj Malhotra's IAS. Today we are going to delve into some of these very significant questions, and we are also going to discuss how the monsoon session of the Indian Parliament, which was held recently, got derailed, got washed away. So let's get started. Parliament and its oversight. So these were some of the news reportings that were recently seen in the newspapers, in the print media, all over the social media as well. That is the Indian Parliament abdicating its oversight over the executive. क्या जो संसद है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है, being the one of the organs of the state, that it has to keep an oversight over the actions of the executive. It has to hold the executive to account. तो क्या उस अपनी जिम्मेदारी में भारत की संसद जो है वो विफल होती दिख रही है हमें? सत्र दर सत्र, साल दर साल ये जो आंकड़े हैं कि किस तरीके से पार्लियामेंट की या संसद की जो फंक्शनिंग है वो बिगड़ती जा रही है, हम सब जो हैं उस चीज़ को देख रहे हैं. सो कुछ न्यूज़ कटिंग्स हैं यहाँ पे जिसमें कहा गया है, डज इंडिया इवन नीड अ पार्लियामेंट एट ऑल? दैट इज टू द एक्सटेंट टू विच वन ऑफ द ऑपोजिशन मेंबर्स वेंट and asked and posed this question in front of the general public as well. So what exactly was the issue, and how was the monsoon session just washed away? तो सबसे पहले जो कुछ statistics हैं जो बहुत ज़्यादा they speak by themselves in volumes. You can see here that the Lok Sabha, which is the house of the people or the lower house, right, where the representatives of people, that is you and I, who choose our representatives to go and sit in the house of the people, they are sent. और वो करते क्या हैं? They work just for 19% of the originally scheduled time for Lok Sabha. मतलब कि इतनी अगर एफिशिएंसी दिखानी है तो भाई चुनाव लड़के आप लोकसभा में जा ही क्यों रहे हो, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, राज्यसभा का हाल भी कोई बहुत बेहतरीन नहीं था. हाउस ऑफ द एल्डर्स कहा जाता है राज्यसभा को, दैट इज द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, बट इट ऑल्सो परफॉर्म्ड मियरली और हैड जस्ट 26% ऑफ फंक्शनिंग ओवर द ओरिजिनली स्केड्यूल्ड टाइम फॉर इट, राइट? देन 18 बिल्स जो पास किए गए लोकसभा द्वारा, उसमें से सिर्फ केवल एक बिल को जो है 15 मिनट के लिए डिस्कस किया गया. पार्लियामेंट का रोल क्या है? व्हाट इज द basic, most fundamental function of the legislature in the country? To get the bills passed. But how to get those bills passed? Certainly you have to have discussions, you have to have debates, you have to have all that consultative process. और यहीं से आपको दिख रहा है कि अगर सारा legislative काम जो है वो that is being passed without any discussion, without any deliberation, and without any debate, what will it lead to? It will lead to ill thought out hasty legislation. That is your and I, that is the taxpayers' money just being sent down the drain. You require crores and crores of money. Remember that when the parliament is functioning, वो सारा जो पैसा है, जो इतने करोड़ों खर्च होते हैं जब संसद जो है उसका सत्र चल रहा होता है, वो आपकी और हमारी जो टैक्स पेयर्स की मनी है उससे चलता है. और अगर जो संसद की सबसे अहम भूमिका है कि डिस्कशन डिबेट करके एक सही तरीके से कानून बनाना, पॉलिसीज बनाना, अगर उसमें कोई भी डेलिब्रेशन नहीं हो रही है तो देन यू कैन वेरी वेल इमेजिन दैट द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट हैज बिकम completely ineffective. Then every bill that was introduced during the session was passed within the session. That is no time for scrutiny. अब एक बात कही जाती है कि संसद जो है इतनी बड़ी एक बॉडी है, इतनी बड़ी एक कह लो कि मल्टी मेंबर बॉडी है, हंड्रेड्स में मेंबर्स हैं, 545 आपके लोकसभा में मेंबर्स हैं और 250 के करीब आपके पास राज्यसभा में मेंबर्स हैं. तो द पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेस, दे आर टू बिग when we say that to sit together and have a fruitful discussion on the legislation. And that is why you have the concept of the parliamentary committees. जब हम बात करते हैं कि संसदीय प्रणाली में जो ये भूमिका निभाती हैं parliamentary committees, the roles which the parliamentary committees they play, it is quintessential for the effective functioning of the Indian Parliament, because you cannot have the legislations passed without the scrutiny of the members of parliament, who cannot, sitting in the parliament itself,
500 odd members or 250 240 odd members sitting in the lower and the upper houses respectively cannot scrutinize each and every provision which has been provided in a piece of bill. एंड दैट इज वाई ये स्क्रूटनी का काम है पार्लियामेंट्री कमेटीज का. और अगर आपने उसी सत्र में जो है हेस्टीली पास कर दिया किसी बिल को, देन सर्टेनली यू आर नॉट लेटिंग द पार्लियामेंट्री कमेटीज डू देयर फंक्शन, राइट. सो ये बहुत कुछ मेजर इश्यूज हैं विच वी हैव विटनेस्ड अगेन इन द मॉनसून सेशन. फिर अगर इसको हम और ब्रॉड तरीके से समझने की कोशिश करें की इश्यूज को, तो सबसे पहले आई हैव डिस्कस्ड विद यू द रोल ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटीज विच हैज बीन ग्रॉसली नेग्लेक्टेड. क्यों? क्योंकि मॉनसून सेशन में कोई भी जो है 15 बिल जो इंट्रोड्यूस किए गए उनको किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए रेफर नहीं किया गया. सरकार जो है इट जस्ट बुलडोज्ड ओवर इट, right. Certainly the opposition, it raised concerns over it, but even I would like to say here very categorically that if we are blaming or if we are holding the treasury benches or for that matter the ruling member of parliaments to account with respect to this derailment or ineffective monsoon session, then equally you have to have pinned the blame on the opposition member parliaments as well. आप well में जा रहे हो, आप फाड़ रहे हो वहां पे दस्तावेजों को, दैट इज अनबिकमिंग ऑफ अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट. यू डू नॉट एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ बिहेवियर व्हेन यू आर सिटिंग इन द ऑगस्ट हाउसेस. देन नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री कमेटीज को ये बिल जो इस बार भेजे गए 18वीं लोकसभा में, 17वीं लोकसभा में, 16th लोकसभा में 27% बिल भेजे गए थे और उससे पिछली बार 71% बिल्स इन द 15th लोकसभा वर सेंट टू दी पार्लियामेंट्री कमेटीज. इससे क्या विटनेस हो रहा है? इससे विटनेस ये हो रहा है कि साल दर साल जो ट्रेंड है वो डिक्लाइन हो रहा है कि हम लेजिस्लेशन जो है उसको रेफर ही नहीं कर रहे हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज को. दिस इज अ ट्रेंड दैट इज डिक्लाइनिंग number of a declining percentage of bills which are being referred to the parliamentary committees, and hence you are having all sorts of hasty and ill thought out legislation coming out of the parliament. Then crucial bills, they were passed among disruptions. कि एक तरफ जो है हंगामा मच रहा है, आप डिस्कस नहीं कर रहे हो कोई भी इश्यूज को, और दूसरी तरफ जो है सरकार, रूलिंग पार्टी, इट इज जस्ट बुलडोजिंग, इट इज जस्ट पासिंग ओवर द बिल्स लाइक एनीथिंग. तो इसमें कुछ बिल्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट, जैसे बैकवर्ड क्लासेस बिल, रिपीलिंग रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन बिल, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल. अब ये ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल यहां लेके चलता है हमें, जो हम एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू साथ में रिलेट कर रहे हैं, इट ऑल्सो बर्डन्स द जुडिशरी. देखो, जब हम बात कर रहे हैं कि जो आपका लेजिस्लेशन है, इफ योर लेजिस्लेशन इट हैज बीन पास्ड आउट इन अ हेस्ट, मतलब कि आपने आपने इसको बहुत जल्दबाजी में पास किया है, आपने इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं किया, कोई डिलिब्रेशन नहीं किया, और साथ साथ जो है आपने इसके ऊपर कोई भी थॉट आउट अच्छे तरीके से नहीं, यू हैव नॉट डन दैट, देन व्हाट इज that legislation going to do? That legislation is invariably going to end up in the courts of the country. Or recently the incumbent Chief Justice of India lambasted over the executive, the government, that it is just passing out the legislation with unambiguous intent and unambiguous objectives. मतलब ये कि जो कानून बनाए जा रहे हैं सरकार द्वारा संसद के थ्रू, उन कानूनों का क्या उद्देश्य है, क्या उससे अचीव करने की कोशिश कर रही है सरकार, वो सभी चीज़ें जो हैं एम्बिगुअस हैं, उनके ऊपर प्रिसाइसली क्लैरिटी नहीं है. और किसी भी अगर कानून में क्लैरिटी नहीं है, देन यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि इट विल बी सब्जेक्ट टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस, इट विल बी सब्जेक्ट टू एट टाइम्स इवन कॉन्ट्राडिक्टरी इंटरप्रिटेशंस. एंड if that legislation or that law will run into contradictory multiple interpretations, what it is going to do, it is invariably going to end up for a dispute resolution or for that matter a clear interpretation by the judiciary. और उसकी वजह से CJI ने कहा कि भाई हमारे ऊपर बर्डन बढ़ जाता है आपके इस ill thought out legislations की वजह से. तो यहां पे सिंपल सी बात, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल. इसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि जब ये आप अध्यादेश लेके आए थे, इसी सरकार ने कुछ प्रावधान जो हैं ट्राइब्यूनल्स के रिस्पेक्ट में उनको अमेंड करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था. इट वाज एन ऑर्डिनेंस दैट वाज ब्रॉट बाय द एग्जीक्यूटिव बिफोर द मॉनसून सेशन वाज देयर, and the Supreme Court had categorically struck it down. The Supreme Court had said that it undermines the independence of the judiciary. कुछ tenure और सर्विस कंडीशंस को लेके
of the chairperson of the tribunals and the members of the tribunals, those were affected by the government through the route of an ordinance which were struck down. Those provisions were struck down by the Supreme Court. CJI said कि अब monsoon session में you have again brought those very provisions through the route of law making by the parliament. What is the logic behind it? What is the rationale behind it? We fail to understand. That is what the Honorable CJI had to say. And इफेक्टिवली व्हाट विल इट अमाउंट टू? जो चीज पहले ही स्ट्राइक डाउन कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आप दोबारा उसको इनैक्ट कर रहे हो तो वो अल्टीमेटली दोबारा कोर्ट में आएगी. उसके ऊपर अगर पहले चैलेंज हुआ था ऑन द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द यू नो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इन itself includes the very independence of the judiciary, and if it is compromising again, if the parliament or the government through the parliament is again compromising on the independence of the judiciary, then certainly it is going to end up in the courts again. And again, the judiciary will have to bear the burden of that ill thought out legislation, right? Then certainly you have this low functioning aspect also, which is one of the other key issues कि भाई मॉनसून सत्र में लोकसभा सिर्फ 21 घंटे के लिए काम किया आउट ऑफ अ शेड्यूल फॉर 6 hours per day for 19 days. और इस बार भी जो है स्ट्रेट आउट ऐसा हुआ है कि पिछले 4 सेशंस में ऐसा हो रहा है कि जो शेड्यूल टाइम था जब सेशन जो है पूरा होना था उससे पहले ही सेशन को सिने डाए एडजर्न कर दिया गया, राइट? देन ये कुछ मेन इश्यूज हैं जो हमने डिस्कस कर लिए. अब इससे देखो व्हाट कुड बी और व्हाट आर दी रीजंस बिहाइंड इट. इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि अगर हमें सोल्यूशन देना है, बिकॉज यू एज एन एस्पिरेंट आर वुड बी रिक्वायर्ड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन टू पुट फोर्थ सम ऑफ द सॉल्यूशंस, राइट? एंड फॉर द सॉल्यूशंस यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वर द प्रोबेबल और व्हाट वर द पॉसिबल रीजंस बिहाइंड दैट. सो सर्टेनली यू हैव के रीजन जो थे डिसरप्शन के, उसमें तो एक बहुत बड़ा, देखो सिंपल सी बात है, प्लीज गेट दिस पॉइंट वेरी स्ट्रेट, दैट whosoever party is in the power, whichever party is the ruling party that has the greater responsibility on its shoulders to take all the stakeholders along with them, that is the ruling party or the ruling alliance, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि भाई आप सभी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सभी जो गुट हैं, सभी जो पार्टीज हैं जिनकी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है, जो एमपीज हैं, उनको भी तो लोगों ने ही चुन के भेजा है ना. अगर आप लोगों की सरकार जो है भारत के नागरिकों ने बनाई है, आपको चुन के इतना बहुमत दिया है, तो उन लोगों को भी जो बाकी दलों से आते हैं, जो आपकी रूलिंग अलायंस का हिस्सा नहीं है, दे ऑल्सो हैव बीन इलेक्टेड बाय द सेम इलेक्टोरेट एंड सेंट टू द पार्लियामेंट. सो वो भी तो एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना इंडियन इलेक्टोरेट को, तो आप उनको साथ में लेके चलो. यू कैन नॉट जस्ट हैव ओनली योर से. देखो दो चीजें समझो यहां पे. पहली मैं जो कह रहा हूं कि सर्टनली नो डाउट इन दैट द रूलिंग पार्टी और द रूलिंग कोalition दैट हैज इनऑर्डिनेटली मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन इट्स शोल्डर्स. But I'm not denying that, yes, the opposition members also have a responsibility for the effective functioning of the parliament as a collective body. Right? This is the Indian parliament. देखो ये NDA का पार्लियामेंट या UPA का पार्लियामेंट नहीं है. This is the Indian parliament जो कि हम लोगों को रिप्रेजेंट करता है. हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे प्रतिनिधि जो हैं वो वहां जाके काम करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए अनरिस्पॉन्सिव एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अपोजिंग आइडियोलॉजीज, ये एक कह सकते हैं दिस कैन बी सेड टू बी दी मोस्ट इफेक्टिव और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न कि सरकार रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी है. फिर inadequate time which was given to the MPs for airing their grievances. भाई इतने सारे issues हैं, there are multiple issues, there are a host of issues which are facing the nation, including your COVID. कोविड के साथ साथ एक अकेला कोविड भी नहीं है, कोविड के साथ साथ यू हैव मल्टीपल इश्यूज, राइट? तो कोविड तो एक इशू है. फिर उसके अलावा रिसेंटली वी हैव हैड द पेगासस, कि पेगासस की वजह से जो है सरकार के ऊपर कई सारे स्नूपिंग के एलिगेशंस लगे. फिर उसके बाद अभी हमने रिसेंटली देखा है कि इन्फ्लेशन भी जो है एक चैलेंज है. और कोविड के बाद ऑब्वियसली यू डोंट जस्ट हैव इन्फ्लेशन बट ओवरऑल द टोटल इकोनॉमिक सिनेरियो इन द कंट्री, दैट इज द टोटल ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी, उसकी क्या कंडीशन है, उसके ऊपर भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ. फिर इसके साथ साथ जो है स्टेलमेट फार्म लॉस के ऊपर कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, ठीक है? उस डिबेट में नहीं जा रहे, बट स्टिल दैट इज वन ऑफ द इश्यूज व्हिच इज प्लेगिंग द कंट्री एंड इट हैज नाउ रन
मोर देन एन ईयर, तो क्या उसके ऊपर स्टेलमेट को कंटिन्यू रखना है? कोई जिम्मेदारी नहीं है कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पार्लियामेंट की और सरकार की भी कि उसको जो है सुलझाया जाए, ठीक है। और इसके अलावा जो है कोविड का ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो तो है ही है, ठीक है। तो ये सभी जो इश्यूज हैं वो अगर मेंबर पार्लियामेंट जो हैं वो रेज नहीं कर पा रहे, देन सर्टेनली the executive is not being held to account by the legislature and its responsibility is being shun off or is being abdicated. Then poor adherence to norms of regulation. अब सिंपल सी बात है कि भाई एक कार्य प्रणाली है जिसके तहत आप जो है काम करोगे, you are sitting in the august house, you are sitting in the supreme legislature of the country, right, the union legislature, और वहां जाके आप अगर नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस जिसकी जिम्मेदारी बिल्कुल प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के ऊपर भी है, इसके ऊपर आएंगे हम, तो अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो ही डेकोरम मेंटेन करने में विफल हो रहे हैं तो देन सर्टेनली दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर डिसरप्शन। और यहां पे आई वुड लाइक टू ऐड हियर इटसेल्फ ओनली दैट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. It's the pivotal office in the parliamentary system of democracy, and certainly the Lok Sabha Speaker and the Chairman of the Rajya Sabha both have this responsibility of ensuring the decorum in the House, of ensuring that these norms and regulations, the rules of procedure of the House, they are followed, right? Then lack of prompt action against disrupting MPs. अब ये दोनों collectively देखो कि सिंपली सी बात है कि norms regulation जो follow नहीं कर रहा और जो disrupt कर रहा है वो एक बहुत बड़ा कारण है। तो चाहे रूलिंग पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट हो, स्पीकर जो है या चेयरमैन जो है वो जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कैपेसिटी में एक्ट कर रहा है, सर्टेनली प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है दैट हैज टू बी एन एपॉलिटिकल ऑफिस, राइट? यू हैव टू गेट अबव, यू हैव टू लिफ्ट योरसेल्फ अबव फ्रॉम द पार्टिजनशिप और पॉलिटिकल लेंसेज के थ्रू जो है अगर आप हाउस को चलाओगे देन सर्टेनली यू आर गोइंग टू सी सच सीन्स इन द हाउस, ठीक है। तो उस केस में ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा निष्पक्ष होनी चाहिए, वो बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। अब देखो रीजंस कुछ हमने देख लिए, इसके साथ ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ डज इट अफेक्ट ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द इंडियन पॉलिटी। नाउ थ्रू दिस पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले तो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर ही जो है इट अफेक्ट्स द इंडियन डेमोक्रेसी इटसेल्फ, देन इट अफेक्ट्स the checks on the government, क्योंकि especially you have the Lok Sabha to whom the Council of Ministers is collectively responsible, and that is a mechanism of checks and balances that is ensured through this collective responsibility of the Council of Ministers to the House of the People. और अगर ये House of the People function नहीं कर रहा है सही तरीके से, then you are failing in your checks on the government. फिर दूसरी चीज देखो बड़ी इंपॉर्टेंट कि अगर जो है इश्यूज के ऊपर सरकार जो काम कर रही है या सरकार जो भी whatever the government is doing on that regard, the government is not being questioned or the government is not being held to account, right, the executive for that matter, then certainly अगर एक हम एग्जांपल के तौर पे यहां पे मैं कोट करूं पेगासस का इशू, तो an issue as you know significant as the Pegasus alleged snooping, which certainly affects your fundamental right and one of the fundamental rights in the Puttaswamy judgment as enshrined by Article 21, that is the right to privacy, that are being violated. आपके fundamental rights की executive के द्वारा अगर जो है हनन हो रहा है, your fundamental rights are being violated by the executive, then certainly it is the role of the parliamentarians also, the legislature, to hold the government to account and ask uncomfortable and direct questions to the executive as to how this is being done. A thing as basic as the fundamental rights, a thing as significant as आपके जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, तो वो फंडामेंटल राइट्स की जो एनफोर्समेंट है एक तो आप कोर्ट्स के थ्रू करवा सकते हो, लेकिन पार्लियामेंट भी जो है वो भी तो सरकार से पूछेगी कि भाई पेगासस स्नूपिंग हुई, आर्टिकल 21 का उल्लंघन हुआ अलिजेडली, तो उसके ऊपर जवाबदेही है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑपोजिशन ने करने की कोशिश करी या नहीं करी, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं यहां पे कि किस तरीके से ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द इंडियन पॉलिटी दे हैव वन और द अदर वे बीन अफेक्टेड बाय दिस डिसरप्शन और दिस डीरेलिंग ऑफ द मॉनसून सेशन। फिर सिंपल सी बात है, पार्टिसिपेटरी एंगेजमेंट नहीं है। पार्टिसिपेटरी एंगेजमेंट नहीं है तो भाई सिंपल सी बात है कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी जो हम हैं, इतने सारे पार्टीज का, इतने सारे लोगों के जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दैट सर्टेनली इज लूजिंग इट्स रिलेवेंस, राइट? यू आर नॉट हैविंग दिस
participation of all the representatives of people in the house, they are not effectively functioning, then certainly जो elected सरकार है, representative सरकार है ना, वो भी इस मामले में कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है इस चीज से. And that also affects the free political parties. How? Because certainly the political parties which are in power, they need to be, क्योंकि देखो उन्हीं के, एक बात और यहाँ पे ऐड करूंगा मैं, एक बात और समझो यहाँ पे कि अल्टीमेटली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स चुन के जा रहे हैं और जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा एमपीज जा रहे हैं उसी की सरकार बनती है ना लोकसभा में. जब हम जनरल इलेक्शंस की बात करते हैं तो आपका एग्जीक्यूटिव भी तो इनवेरिएबली निकल के कहाँ से आ रहा है, लेजिस्लेचर से. तो वो सारी चीज़ें जो हैं पूरा एक, दैट इज अ चेन, right? And that is what you have to understand, that all these aspects are affected. Then we'll move towards the concluding part of this lecture with what could be the futuristic angle to it, what could be some of the suggestions certainly which have been put forth by the scholars, and there are certain international examples also which can be, you know, custom made and which can be tailor made to suit the Indian parliamentary conditions, right, which we can adopt. तो सबसे पहले तो देखो जो डेकोरम है पार्लियामेंट का, हाउस का, इट इज एन ऑगस्ट हाउस, इट्स एन एस्टीम्ड हाउस, है ना. उसके लिए बेटर इन्फोर्समेंट होनी चाहिए ऑफ अ कोड ऑफ कॉन्डक्ट, नॉट जस्ट फॉर द पार्लियामेंटेरियंस बट ऑल्सो फॉर द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, क्योंकि विधानसभाओं के भी हाल जो है ना वो बहुत कोई अच्छे तो है नहीं. ऐसे ही सिमिलरली ऑन द सिमिलर लाइंस द एमएलएज ऑल्सो बिहेव इन देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबलीज. तो यहाँ पे देखो सबसे इसको फर्स्ट चीज को हम यहाँ से रिलेट करेंगे लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन के साथ, who enjoys a pivotal position in the parliamentary democracy system in India. ठीक है, और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो एक जो चीज कही जाती है कि स्पीकर का जो ऑफिस है भाई वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली देखो स्पीकर वो कहते हैं ना कि आई एम द बॉस एंड ओनली व्हाट आई से इज राइट. That is the case with the presiding officer, especially the Speaker of the Lok Sabha. The Speaker of Lok Sabha has immense powers when it comes to the functioning of the Lok Sabha. Whatever the Speaker has decided, whatever the Speaker will, you know, allow to function, how the House will function, which motions will be admitted, which resolutions will be admitted, or how the House will conduct its procedure, that all is dependent on the Speaker of the Lok Sabha, and that is why this is the pivotal position which he or she holds. ठीक है, तो इसीलिए ये स्पीकर जो है लोकसभा का, इनका ए पॉलिटिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है. और इसीलिए एक बहुत अच्छी कन्वेंशन है विच इज फॉलोड इन द यूनाइटेड किंगडम कि जो भी व्यक्ति स्पीकर वहां बनता है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप जो है उसको त्याग देता है. अब हमने जो है दुनिया जहां से बहुत सारी चीजें उठा ली, लेकिन जो बहुत एक्चुअली में इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन जहां पे करनी चाहिए थी, दैट वेरी स्मार्टली हैज बीन शन्ड बाय आवर political parties and the political leaders. Be it A political party, be it B political party, everybody has done that. जब हम सत्ता में हैं तो नहीं करेंगे, जब हम विपक्ष में चले जाएंगे तो हम उसकी डिमांड करेंगे. यही होता आया है और यही हो रहा है. ठीक है, सो लेकिन फिर भी where there is a will, there is a way, and the electorate should ensure कि हम ऐसी चीज़ों पे सरकार को जोर दें जब इलेक्शंस की बात आती है कि भाई ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ऐड करना चाहिए हमारे पार्लियामेंट के सिस्टम में भी, कि स्पीकर जो है वो अगर पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठ जाए या पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन ही कर दे आफ्टर दैट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट मेंबर ऑफ द लोकसभा हु इज नाउ इलेक्टेड एज अ स्पीकर. ठीक है, तो उससे थोड़ा इंश्योर हो सकता है कि हम एक्सपेक्ट करें कि स्पीकर ए पॉलिटिकल रहेंगे, पार्टिसन नहीं होंगे, ही विल बी और शी विल बी नॉन पार्टिसन. देन यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपोजिशन डेज. ऑपोजिशन डेज एक ये कॉन्सेप्ट है यूके में जो फॉलो किया जाता है, विच सेज दैट देयर आर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज विच आर ईयरमार्क्ड व्हेन द एजेंडा ऑफ द पार्लियामेंट इज डिसाइडेड बाय द ऑपोजिशन. कि जो विपक्ष है वो डिसाइड करता है कि क्या एजेंडा होगा, किन चीजों को डिस्कस किया जाएगा. तो इसमें आप एक चीज इंश्योर कर सकते हो कि ये जो पार्टीज हैं 20 दिन के लिए, जैसे यूके में डिसाइड करती हैं ऑपोजिशन पार्टीज कि क्या डिस्कशन होगी हाउस में, तो उस वक्त आप सरकार को घेर सकते हो, आप सरकार से अकाउंटेबिलिटी एक्चुअल में बहुत इफेक्टिव तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. राइट, तो इन कन्वेंशंस को इंक्लूड किया जा सकता है. आपको कोई लेजिस्लेशन अमेंड करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ हाउस के थ्रू भी कर सकते हो. राइट, पर सिर्फ एक विल की बात है, सिर्फ एक इच्छा शक्ति की बात है. देन एक्सपैंडेड टाइम फॉर अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट. एक चीज ये भी कही जाती है कि भाई कई बार ऐसा वाकई में होता है कि सत्र जो है वो छोटा होता है इतना कि इफेक्टिवली अगर आपको बिल को इंट्रोड्यूस करके उसके ऊपर यू हैव टू हैव द डिस्कशन ऑल्सो एंड यू हैव टू गेट दैट बिल, यू नो, स्क्रूटनाइज्ड बाय द पार्लियामेंट्री कमिटीज ऑल्सो, देन द टाइम पीरियड ऑफ वन सेशन इज
मे बी स्मॉल। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए कि अगर कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है सेशन के टाइम को, और उसमें एक चीज़ और ध्यान रखो कि बड़ा करने की जो ज़रूरत है, दैट इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्किंग डेज विच वॉज सजेस्टेड बाय अ 2001 in 2001 a conference of parliament that was held which where this particular thing was suggested। तो उसमें हम एक चीज़ इंश्योर करेंगे या एक चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो यहाँ पे देंगे कि उस वक्त जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो एज प्रोफेशनल्स, जैसे आप लोग या हम लोग, जैसे मान लो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो दे रेगुलरली गो टू देयर ऑफिसेज एंड दे हैव देयर असाइंड वर्क्स टू डू, राइट, एंड सर्टनली दे आर हेल्ड अकाउंटेबल ऑल्सो फॉर देयर एक्ट्स ऑफ कमीशन एंड ओमिशंस। कि एक ACR बनती है, उसके हिसाब से अकाउंटेबिलिटी रखी जाती है कि किस अफसर ने काम किया, नहीं किया, क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया। तो उसी लिहाज से ये सेम तर्ज पे बात की जा रही है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, उनको भी इस तरीके से काम जो है करवाया जाए कि येस एज प्रोफेशनल्स दे आर गोइंग टू द पार्लियामेंट, राइट, दे आर नॉट जस्ट गोइंग फॉर फॉर द सेक ऑफ फन और मैरी मेकिंग देयर, कि वो जा रहे हैं वहाँ पे पर्टिकुलरली पूरे दिन, पूरे सेशन का डिसाइडेड है एक कि इतना काम जो है या इतना दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क एंड दिस इज हाउ द सेशन इज गोइंग टू बी कंडक्टेड। और वो अकाउंटेबिलिटी तय की जाए कि अगर मान लो हम नंबर ऑफ डेज बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि सर्टनली यू हैव ग्रेट एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड व्हेन द सेशन इज, व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन, एंड फॉर दैट certainly if you are increasing the number of days, तो उसमें ये होना चाहिए कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं प्रॉपरली उनको एक प्रोफेशनल रोल की तरह जो है चेक किया जाए कि क्या काम कर रहे हैं या फिर सिर्फ जो है वेस्ट ही हो रहा है पार्लियामेंट का टाइम, ठीक है। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट बाय द नेम ऑफ शैडो कैबिनेट, और इसके साथ साथ एक विजिलेंट सिटीजन या इलेक्टोरेट की चीज़ जो है वो मैं जोड़ के बताना चाहता हूँ। तो पहली चीज़ तो है शैडो कैबिनेट के यूके में, अगेन दिस इज द वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द यूके विच इज़ फॉलोड, जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं ये लोग। शैडो गवर्नमेंट का मतलब सिंपल सा ये है कि जैसे मान लो यू हैव द प्राइम मिनिस्टर, यू हैव द होम मिनिस्टर, यू हैव द फाइनेंस मिनिस्टर एट्सेट्रा। तो ऑपोजिशन में ये तो जो हो गया कि ये करंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट है, दिस इज द रूलिंग पार्टी, राइट। तो इनके करस्पॉन्डिंग एक यहाँ पे जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन ने क्या किया कि अपने ही मेंबर्स में से कलेक्टिवली दे हैव असाइंड द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू वन पर्सन, दैट इज द शैडो ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, or you can say he'll be the shadow prime minister. Similarly you will have the shadow home minister, shadow finance minister। तो इससे होगा क्या कि हर एक मंत्रालय और हर एक मंत्री की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में आसानी हो जाएगी, राइट। ईच पर्सन, ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द ऑपोजिशन विल बी असाइंड टू look into what exactly is being done by the Ministry of Home Affairs, by the Ministry of Finance, by the Ministry of Defense, by the Ministry of Education, and so on and so forth. And they'll keep a check on what exactly is the policy being made, what exactly are the legislations which are being put forth by these respective ministries, and that is how you can ensure that you do a man-to-man marking. If you allow me to quote that from the hockey, the game of hockey, right, that you do man-to-man marking and you effectively ensure that accountability is ensured on the ministerial level as well, right। Then certainly अगले लोकसभा के चुनाव के लिए जब ये मेंबर पार्लियामेंट्स आ रहे हैं अपनी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज में रिस्पेक्टिवली, आप जो है you the electorate, certainly even after 5 years you have this opportunity to ask tough questions, to ask direct questions, to ask uncomfortable questions to your respective member of parliaments, that what did you do in the past 5 years? Why should we vote for you? Right? That might sound somewhat superficial or utopian to you, but ultimately देखो सिंपल सी बात है कि वोट का एक अधिकार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके थ्रू भी अगर सारे लोग मिलके चाहें तो एक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं। देन पार्लियामेंट डिसरप्शन इंडेक्स एंड ऑटोमेटिक सस्पेंशन। तो ये अभी रिसेंटली जो है आइडिया एक बार फिर मूट किया गया था कि भाई जिन लोगों, जो भी पार्लियामेंटेरियंस वेल में आ रहे हैं हाउस की, या डिसरप्शन क्रिएट कर रहे हैं, या टेबल्स पे चढ़ जा रहे हैं, या माइक्स को तोड़ रहे हैं, राइट, दिस काइंड ऑफ न्यूसेंस कैन नॉट बी टॉलरेटेड एंड एटलीस्ट सच डिसरप्टिव बिहेवियर शुड प्रोवाइड फॉर ऑटोमेटिक सस्पेंशन। ठीक है, एक तो बात हो गई वो। दूसरा हो गया कि पार्लियामेंट डिसरप्शन इंडेक्स के तहत जो है इसका आइडिया ऑल्दो बोथ दी आइडियाज आर इन नेसेंट स्टेज, पर हाँ ये ज़रूर है कि हम ये सोच सकते हैं कि इन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके इफेक्टिव थोड़ी सी फंक्शनिंग या इम्प्रूवमेंट जो है लाई जा सकती है, राइट। कि 2019 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडीज, इट वाज हेल्ड इन उत्तराखंड, वहीं पे ये आइडिया मूव किया गया था, राइट, बाय डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जा सकता है। तो सो दीज कुड बी सम ऑफ द सजेशंस व्हिच यू कैन कोट।
when we can give a futuristic angle so as to ensure that such derailments of the Indian Parliament that do not happen, right? Because certainly it lowers the dignity of the esteemed houses. It certainly makes a mockery of the Indian parliamentary system. It certainly also sets the precedent for future. अगले parliamentarians के लिए आप क्या जो है precedent set कर रहे हो? That you can just enter the parliament, make a mockery of the entire system and walk away after 5 years again to the electorate asking for the votes, right? So I believe that the message which I wanted to convey is loud and clear. You have got all the concepts very thoroughly. We'll meet again in one such informative video. Until then, all of you stay safe. Have a great festive weekend. Happy Raksha Bandhan to all of you and Jai Hind.